When we study about the context, it is said, or it is the probable context is because it was written when David sinned against the Lord in the case of Bathsheba. बात यह है इस दोनों भजन संगीता बत्शेबा के साथ जो गलती जो पाप दाऊद के जीवन में हुआ, ऐसा वाले एक संदर्भ में, मतलब दाऊद गलत पाप करते हुए बैठने के एक संदर्भ में लिखे हुए एक भजन संगीता है इस दोनों भजन संगीता. And Psalm 51 is a psalm of prayer for God's cleansing in his life. भजन संगीता 51 दाऊद का एक प्रार्थना है उनको शुद्ध करके देने के लिए. And in Psalm 38, he is pleading God that he may not be condemned by his anger. भजन संगीता 38 में ऐसा भजन से दाऊद ने विनती या प्रार्थना करता है, परमेश्वर आप मुझे डांटना नहीं, आप मुझे तोड़ना नहीं. I want to say this for the praise of his name. I and Jesus did not decide or talk which psalm we should read today. It was, we can say coincidentally, or it was divinely ordained that God's used both of us and helped us to meditate from the similar psalms. सच्चाई का बात यह है, मैं और जॉन सर ने भी इस भजन संगीता कौन सा भजन संगीता पढ़ना करके कोई डिस्कशन कोई बात भी नहीं किया, फिर भी परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई दिया. जो भजन संगीता मैं और सर ने चुना दोनों एक ही कॉन्टेक्स्ट एक ही संदर्भ का है. And usually when I was meditating this morning, so I was thinking usually people don't meditate from Psalm 38. Other psalms, Psalm of praises and other psalms, thanks of giving, we often meditate. But Psalm 38 is very kind of rare that we meditate upon. मैंने सुबह इस भजन संगीता 38 का ऊपर चिंता या मनन कर रहा था. मैंने सोचा ज्यादातर लोग इस भजन संगीता के ऊपर चिंता या मनन नहीं करता है, फिर भी हम आज करेंगे करके मैंने सोचा. And I have this categorized this psalm into, or divided this psalm into some 5 or 6 groups. मैंने इस भजन संगीता को 6 भागों में बांटा हूँ. First is Lord's anger, which starts from 38 verse 1 to verse 3 A part. भजन संगीता 38 का 1 से लेकर 3 का पहला भाग तक मैंने एक भागों में बांटा है. वो परमेश्वर का क्रोध. So David is experiencing God's anger. He is feeling that God is really angering with him, or he is rebuking him because of his sin. दाऊद ने ऐसा महसूस या अनुभव कर रहा है, परमेश्वर उनका ऊपर क्रोध या गुस्सा होकर उनकी पाप की वजह से उनका ऊपर गुस्सा या क्रोध हुआ है. We know from the scripture, Bible says, his anger lasts for a moment, but his love stays forever. हम भजन संगीता से ही ये वचन पढ़ता है, परमेश्वर का क्रोध थोड़ी समय के लिए है, उनका प्यार तो बहुत शायद से बहुत समय के लिए है. But the thing is that one moment of his anger can cause great destruction or devastation in the life of his people. बात ये है, उनका परमेश्वर का एक छोटी सी समय का क्रोध भी उनका लोगों का जीवन में बहुत मुसीबतें लेके आ सकता है. Therefore the psalmist is aware of the wrath of God. If once it comes upon a person, it will be very difficult to come out of that or escape from that wrath. भजन संगीतकार ये बहुत अच्छा से उनको पता है, परमेश्वर का थोड़ा सा समय का भी क्रोध किसी का ऊपर गिरा तो उनको बचाकर जीना बहुत मुश्किल होगा. We find some glimpses of God's wrath in the scripture when we read from Old Testament and New Testament. जब हम नया नियम पुराना नियम पढ़ने के समय परमेश्वर का क्रोध के बारे में बहुत ऐसा कहानियां हम पढ़ सकता है. He got angry, or we can see his wrath being outpoured on the land, on the whole land in the time of Noah. हम ऐसा पढ़ सकता है, नूह के समय में भी परमेश्वर का क्रोध पूरा देश में आ गया. देश कैसा एक हालत देश में आया करके हम पढ़ा है. But Bible says Noah find grace in God's sight, and because of which the grace prevents us from God's wrath. परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ नूह का ऊपर ही था. वो अनुग्रह की वजह से हमारा जीवन कैसे होगा करके नूह का जीवन से हम पढ़ सकता है. Grace helps us to escape from God's wrath. परमेश्वर का अनुग्रह हमें परमेश्वर का क्रोध से बचाकर जीने के लिए मदद करता है. Had not Noah found grace in God's sight, he and his family also would have got destroyed in that. अगर नूह और नूह का परिवार का ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह नहीं तो उनका परिवार भी पूरा नष्ट हो सकते थे. But because of God's grace, Noah's family escaped and they could come out alive after the time of flood. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से ही नूह और उनका परिवार पूरा उस नाव पे चढ़कर खुद को बचा सका. During the time of Moses, we find Dathan, Abiram and Korah. These people rose against
Moses and they were murmuring and complaining against Moses. Is this the person whom God has chosen? God can speak to us also. जब हम मूसा की कहानी पढ़ने के समय वहां भी कोरा ऐसा लोग मूसा का विरोध बातें करने लगा। बातें करने के समय कैसे उनका जीवन का हालत कैसे हो गया हम पढ़ सकता है। They were complaining against God's chosen person or the anointed person of God, Moses. They were speaking against him. वो लोग परमेश्वर से अभिषेक पाए हुए एक व्यक्ति का विरोध बात कर रहा थे। And God had to intervene and come in between them and show whom He has chosen. उसका बीच में परमेश्वर ही उतर के आकर परमेश्वर उन लोगों को दिखाया मैंने किसको चुना हूं। And there God displays His wrath or His judgment or His anger, how it would be when God's wrath come upon a person. वहां हम ये भी देख सकता है परमेश्वर उन लोगों का बीच में परमेश्वर का क्रोध को दिखाया। इधर से हम पढ़ सकता है या समझ सकता है परमेश्वर का क्रोध कितना बड़ा है। And we know, we have read that the land got split and the people, that family themselves, whole completely fell into that land, that the earth engulfed them. कहानी हमें ये समझाता है परमेश्वर ने पूरा धरती को दो भागों में स्प्लिट या भाग कर दिया। उसके बीच में गिरकर लोगों का जीवन में कितना मुसीबतें आया। Shall we read from the book of Numbers? आइए हम पढ़ेंगे गिनतियों का किताब Chapter 16, अध्याय 16 verses 1 and 2. पहला और दूसरा वचन। गिनतियों का किताब अध्याय 16 पहला 2 वचन किसी ने खड़े होकर पढ़िए। कोरह जो लेवी का परपोता कहात का पोता और सिरहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और लेपेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनके संग लिया। Verse 2, yeah. 2 and 3. इन तीनों रूबेनियों ने मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनके संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में उनसे पद वालों क्यों बन बैठे हो? Amen. Okay, that we probably most of us are aware of this story or familiar with this story, so I don't want to get into the full detail. ये जो कहानी है आप लोगों को पहले से पता है, इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा व्याख्या करना नहीं चाहता हूँ। So those people are saying you have gone too far. Every person of this congregation is holy. ऐसा लिखा है इधर वो लोग ऐसा बताने लगा। Verse 3, you have gone too far, for all in the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. तीसरा वचन किसी ने पढ़िए। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में उनसे पद वालों क्यों बन बैठे हो? Their complaint is, why do you exalt yourselves in the whole congregation or the assembly? वहाँ बात यह है वो लोग एक कंप्लेंट दे रहा है, क्यों इस समूह के इस कलीसिया के बीच में तू खुद के बारे में बड़ा करके बता रहे? Why you have become leaders of us? Everyone is holy. You are also holy. I am also holy. He is holy. She is holy. Everyone is holy. उन लोगों का कंप्लेंट ये है, तू क्यों एक अगुआ बनकर हमारा बीच में है? हम भी पवित्र है, तुम भी पवित्र है, हम सब पवित्र लोग हैं। So they are questioning or demeaning the leadership or leaders whom God appointed over the people of Israel. बात ये है, ऐसा बताते हुए वो लोग ये काम कर रहे हैं, वो लोग परमेश्वर से चुने हुए लोगों को नीचे करके बात कर रहे हैं। This teaches a very important lesson in the life of believers. हम विश्वासी लोगों का जीवन में भी इसमें से हम कुछ सीख सकता है। Don't argue, don't complain against the leaders whom God has appointed over His people. परमेश्वर से चुने हुए अगुआ लोगों के बारे में हम कभी भी कंप्लेन नहीं देना है, आरोप नहीं लगाना है। Don't stand to oppose them. If they are wrong, God Himself will deal with them. We don't need to push them or complain against them. Raise some people, make a group and oppose them. It may be our pastors, our teachers, our leaders, mission directors,
whoever it be, let us not oppose them. चाहे हमारा पास्टर होगा, टीचर होगा, हमारा डायरेक्टर होगा, कोई भी होगा, परमेश्वर से विरोध काम करने वाला लोग है तो परमेश्वर उन लोगों को नीचे उतारने के लिए किसी को खड़ा करेगा। Let us believe that they are appointed by God, and in due time, if it is God's will, God will replace them with someone else. बात ये है परमेश्वर ने उन लोगों को चुनकर रखा है, अगर एक समय में उन लोगों को नीचे उतारने है तो भी परमेश्वर वही काम करेगा। The amazing thing in this incident is the response of Moses. बात ये है इधर मूसा ने कैसा उत्तर दिया, ये बहुत आश्चर्य बात है। Verse 4 it says, and Moses heard it, he fell on his face. जब मूसा ने, वचन 4 में लिखा है, जब मूसा ने ये बातें सुना उन्होंने नीचे गिरकर He प्रार्थना की। fell on his face. That shows utter or complete humbleness or humility in the presence of ये God. बात है हमें ये सिखाता है, मूसा ने परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के चरणों में पूरा नम्र होकर गिर पड़ा। He didn't go to argue. He said, the Lord will show who belongs to his. I don't need to argue and prove whether I am chosen by God or has God kept me as leader upon you. मूसा ने ये बोलने लगा, मैं किसी के सामने जाकर पूरा व्याख्या कर मेरे बारे में विवरण करना नहीं चाहता हूँ, परमेश्वर ने ही मेरे लिए करके देगा। We live in a context where people are running for positions and chairs to get some chairs or position. They are running and trying to, pull others' leg so that they may become leader or they may sit on their places. हम ऐसा एक संदर्भ में जी रहा है, लोग कुर्सियों के लिए, पोजीशन के लिए, स्थान के लिए दौड़ रहा है, दूसरों को भी जीवन में मुसीबत लेके आते हुए कुछ स्थान की सोच में लोग जी रहा है। But Moses was not so much interested to become a leader. It was God who appointed him to be a leader. इधर हम ये सीख सकता है, मूसा किसी स्थान के लिए दौड़ने के नहीं चाहा, क्योंकि उनको पता था परमेश्वर ने चुनकर उनको वो जगह देगा। If you are chosen for some position, some place, you don't need to fear. You just need to fear God. When it is time, God may, if God wishes, He may replace you, or if He wishes, He will keep you there. बात यह है, आप लोग भी बहुत सोच या चिंता नहीं करने का है। अगर आप लोगों के लिए परमेश्वर एक स्थान को चुन के रखा तो परमेश्वर सही समय पे वहां बिठाएगा, अगर वहां से निकालने का समय है तो वहां से निकालेगा। We only need to trust upon God. We only need to stick closer to God. हम परमेश्वर पर ही हमारा पूरा विश्वास रखना है, परमेश्वर से ही हम आगे बढ़ना है। And from verses 20 to 24, the God is coming. Can we read that verse 20 onwards? Please 21 read वचन it. से लेकर और पढ़िए। 16 chapter 16 16 का। verse 20 onwards. 16 का 21 से 21 वचन से लेकर। No, 20 से। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह से बल गिर के कहने लगा, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। Amen. So we find God is coming and He is about to pour His wrath upon the congregation. इधर हम ये देख सकते हैं, परमेश्वर ने खुद आकर वहां का विश्वासी लोगों के ऊपर उनका गुस्सा दिखा रहा है। And again we find the characteristic of a leadership, a leader, how a leader should be. फिर भी हम देख सकता है एक अगुआ का कैरेक्टर या गुण कैसे होना है और कैसा जीना है वो। If we had been in place of Moses, we could have rejoiced. Oh, that's great, God! Come on, let your anger come upon these people and kill them, consume them. अगर हम मूसा के जगह पे तो हम ऐसा बोलते थे, परमेश्वर आप आ जाइए, आकर इन लोगों को पूरा तोड़कर इन लोगों इधर से निकालिए करके हम बोलते थे। God, this person, that person, this person, that person, they all spoke against me. Now you kill them all. हम ऐसा बताने वाला लोग होगा शायद, परमेश्वर ने इन्होंने मुझे किया, ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, एक एक का ऊपर उंगली उठाने वाला लोग हम बनते थे। But what did Moses say? मूसा ने क्या बताया? What was Moses' response? मूसा का रिप्लाई उत्तर क्या था? He said, "Oh God!" He fell again. He fell on his face. That's the position of showing his humility. फिर भी हम देख सकते हैं, मूसा ने पूरा नीचे गिरकर प्रार्थना करने लगा। Oh God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and will you be angry with all the congregation? That one man's sin, let it not be judged upon. Don't bring
punishment upon the whole congregation, whole people. 16 का 22 से लेकर पढ़िए। 16 से। तब वह मुंह के बल से गिर के कहने लगा, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों की आत्मा के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? So Moses, the leader whom God appointed, intercedes for his people. इधर हम देख सकता है जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया, उन्होंने मध्यस्थता कर रहा है। He doesn't want his people to perish. उनका लोगों को नष्ट होने के लिए पसंद नहीं करता है। He's humbling himself and pleading God's mercy. और नम्र बनकर परमेश्वर का दया के लिए विनती कर रहा है। And we find that only the family of Korah, Dathan and Abiram were separated from the congregation. हम आगे पढ़ सकता है, कोरा का नताथा का परिवार ही वहां से कलिसिया से दूर परमेश्वर ने अलग किया है। And shall we now how the judgment, wrath of God comes upon? We'll read verse 30 and 31. 31, 32. 30 और 31 से Quickly. आगे पढ़िए। Quickly, somebody please read. इस 31। 30, 31, 32. परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनके और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह यह सब बातें कह चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी के अपना मुंह खोल दिया और उनका और ने घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनके सारी संपत्ति को भी निगल लिया। Amen. So, and then verse 35. तब यहोवा ने पास से आग निकाली और उन 250 धूप चढ़ाने वाले को भस्म कर डाला। Amen. So the wrath of God came upon, and we find Moses saying, because these people have spoken against the Lord, not against me, they have spoken against the Lord. इधर हम मूसा ऐसा बातें करते हुए हम देख सकता है, मूसा ने बताया ये जो लोग है परमेश्वर का विरोध बातें किया, मेरे विरोध नहीं है। When if Moses said, they have not sinned against me, they have not despised me, they have despised God who appointed me upon them. मूसा ने ऐसे बताया ये जो लोग है मेरा ऊपर आरोप नहीं लगाया, मेरा ऊपर गलत बात नहीं किया, परमेश्वर के सामने परमेश्वर के बारे में परमेश्वर से ही आरोप लगाया। And God comes, and even God that the earth swallows them, and also fire of God comes upon the 250 men and consumes every one of them. 250 लोग वह थे, सबका ऊपर परमेश्वर का आग गिर पड़ा, परमेश्वर का क्रोध गिर पड़ा। Because they were offering that incense. In verse 35 it says, consume the 250 men offering the incense. वहाँ भजन 16 का 35 में लिखा है 250 लोग कुछ बातें वहाँ कुछ काम वहाँ ऑफरिंग कर रहा था, दे रहा था। So that is giving another lesson. God wants to accept us before He accepts our worship. परमेश्वर हमें पहले स्वीकार करना है, हमारा आराधना को स्वीकार करने से पहले। So their lives were not acceptable. So God didn't want their worship or their offering also. पर उन लोगों का जीवित या जीवन परमेश्वर स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनका ऑफरिंग दान भी परमेश्वर ने स्वीकार नहीं So किया। we are looking at how the wrath of God can bring a great destruction. हम अभी ये चीज देख रहे थे, परमेश्वर का क्रोध कितना बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में लेके आ New सकता है। Testament also, Ananias and Sapphira, they murmured or they tried to cheat the Holy Spirit, and we find immediately they fell down and gave up their spirit. नया नियम में भी हम पढ़ सकता है अननिया और सफीरा का कहानी, वो लोग पवित्र आत्मा से ही झूठ या परमेश्वर से ही कुछ बातें छुपा के रखने लगा, उन लोगों के जीवन में कितना प्रभाव आया। So the wrath of God, psalmist knows it's very severe. It's very hard to escape, almost like impossible to escape from that. भजन संगीतकार को ये बहुत अच्छा से पता है परमेश्वर का क्रोध का प्रभाव कितना गहरा या बड़ा है। Because he has sinned, he knows I deserve God's wrath. क्योंकि भजन संगीतकार को ये पता है मैं परमेश्वर का क्रोध मेरा ऊपर गिरने का चांसेस या मौका मेरा जीवन में है, Because I have sinned against God. क्योंकि मैं परमेश्वर के विरोध पाप किया So है। he pleads God's mercy. God, be merciful to me.
Do not rebuke me in your verse 1. Do not rebuke me in your anger, not discipline me in your wrath. That is a prayer that psalmist says because he knows the severity of the wrath of God. इसलिए भजन संगीतकार ऐसा प्रार्थना करता है, परमेश्वर आपका दया मेरा ऊपर दिखाना, आपका क्रोध में, आपका गुस्सा में मुझे डांटना नहीं, मुझे सिखाना नहीं. And that's why he says, there is no soundness in my flesh. Their indignation is there. There is no health in my bones. My iniquities have gone over my head. He expresses a situation that he cannot bear the punishment of his sin. It is too much for him. इसलिए उन्होंने ऐसा प्रार्थना करता है, विनती करता है, मेरा मांस में, मेरा शरीर में आवाज नहीं है, मेरा हड्डियों में ताकत नहीं है, मैं ऐसा वाले संदर्भ में हूँ. Oh God, come and save me. परमेश्वर आकर मुझे बचाना. That is his prayer in Psalm 38 and 51 that we read. यही प्रार्थना भजन संगीत 38 और 51 में आप लोग पढ़ सकता है. So he was aware and he knew that it is better. It is the only way to escape God's wrath is God's mercy and grace upon him. परमेश्वर से क्रोध से, परमेश्वर का गुस्सा से बचाकर जीने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही काम है, उनका कृपा है, उनका दया को पाकर जीना है. One more last thing I want to say and conclude this short message from the psalm. इस संदेश को मैंने और कुछ बातें बताते हुए समाप्त करना चाहता हूँ. Verse 4 shall we read? 38 Psalm 38 verse 4. चौथा वचन पढ़िए, भजन संगीत 38 का चौथा वचन पढ़िए. क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए. Amen. Psalmist says the sin has become heavy upon him. भारी हो गए हैं. भजन संगीतकार ये बताता है, परमेश्वर मेरा जो पाप है मेरा जीवन में बहुत भारी हो गया है. It says they are like a heavy burden. It is like a burden upon me. वो ऐसा बताता है, एक बड़ा बोझ की समान, बड़ा बोझ की समान वो मेरा सिर पर बैठा है. परमेश्वर That shows the reality of the sin. वो एक पाप की पाप कैसा है वो सच्चाई के बात को दर्शाता है. Sin seems very easy and light when we commit sin. जब हम पाप करता है बहुत हल्का से हम महसूस करता है. It seems very easy, very good, very pleasant, very nice. So many good things only we will find about sin. बहुत पसंदीद बातें, बहुत अच्छे बातें ही हम इस पाप करने के समय हम देख सकता है. But फिर भी लेकिन its reward, its consequences so much burdensome. A person cannot bear its burden. उसका दंड बहुत भारी है, हम उसको सहना भी बहुत मुश्किल होगा. Psalmist has used a maximum time of words that he can use to express the burden. He says, it is like a heavy burden, too heavy for me. How much heavy we cannot express in words. इसलिए भजन संगीतकार ऐसा पुकारते हुए प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरे लिए बहुत बर्डन, बहुत बोझ भारी है, मैं सहन नहीं पा सकता. The guilt that sin brings upon a person is too heavy to bear. वो पाप की जो सोच हमारे जीवन में आता है वो बहुत भारी हमारा जीवन में. Some people sometimes go and kill themselves because their soul or the devil is always condemning them. You have done this, you have done this, and the person cannot bear that guilt and sometimes takes wrong paths in their पाप life. के बाद जब पश्चाताप हमारे जीवन में आता है, कुछ लोग खुद को मारने के लिए भी तैयार होता है. Because the guilt is so heavy for a person to bear. क्योंकि वो पश्चाताप का समय, वो अनुभव हमारे जीवन में बहुत हेवी या भारी है. And let me take you to the words of Jesus, how Jesus says about this thing. मैं आप लोगों को यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या बताया वो भी बताना चाहता हूँ. Matthew chapter 11 verses 28 to 30. मत्ती सुसमाचार 18 का 11 का 11 chapter 11 verses 28 to 30. मत्ती सुसमाचार 11 उसका 18 से लेकर 28 to 30. 28 से लेकर 30 तक. ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझे से सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है. Amen. Jesus says, "Come to me, all who labor and heavy laden." पर यीशु मसीह बुलाता है जो बहुत सोच में बहुत
मेहनत के साथ काम करने वाला जो लोग है उनको यीशु मसीह उनके पास बुलाता है। How is it say? Hey, both परिश्रम कर रहे बोझ से दबे लोग, heavy laden, their great burden is upon them. बोझ से दबे हुए लोग, ऐसा वाला लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह उनके पास बुलाया है। He says, I will give you rest. परमेश्वर बताता है मैं आपको रेस्ट करने के लिए जगह दूंगा। I will take your burden upon me and I will give you rest. आपका बोझ या आपका जो वेट है वो मैं लेकर आप लोगों को रेस्ट देना चाहता हूँ। Because he says, but when I take your burden, you need to take my yoke upon yourself. बात ये है मैं जब आपका वो बोझ मैं लूंगा, मेरा वो योक आप लोग लेने का जरूरत है। The jua or that yoke is something that animals carry to upon their shoulders, upon their neck to carry some वो burden. जुआ ऐसा एक चीज है, वो जानवर उनका नेक पर लेकर उनके गले पर लेकर आगे चलता है, ऐसा वाला एक चीज है। And in the cart there may be some burden or people may be sitting in the cart. पीछे जगह है वहां लोग सब कभी कभी लोग बैठता है और कुछ भारी चीजों को रखता है। But Jesus is saying, take my yoke upon yourself, because he says it is easy and the burden is light. परमेश्वर यीशु मसीह ये बताता है मेरा जुआ को आप लोग लेना वो बहुत बहुत आसान है आप लोगों को लेकर चलना। If I ask you to carry this remote, you will be easily carrying it. You may keep it in your pocket, you may hold it in your hand and carry it for a long time. It won't seem very much burdensome while walking, taking. You usually carry your phone. Does it seem very burdensome to you? अगर हमने बोला इस रिमोट लेकर आप लोग लेके चलना बहुत आसान बात है, पॉकेट में लेना और चलना या फोन लेके चलना बहुत आसान बात है। But if I give you this chair and ask you to go, you won't be able to go much far. अगर मैंने इस कुर्सी देकर बोला इस लेकर पे चलो करके बोला तो बहुत मुश्किल होगा इसको लेके चलना। Even this laptop is also very heavy. It will be very difficult to carry it and walk some distance. इस लैपटॉप भी बहुत भारी है, लेकर चलना बहुत मुश्किल होगा। Jesus says, my burden which should be heavy. He says, it's a miracle. When you walk with me, my burden will be light for you. मेरी जो यीशु मसीह ने ये बताया मेरी बोझ जो है आप लोग लेके चलता है बहुत हल्का से आप लोग महसूस करेगा। It won't feel very burdensome to you because there's one reason. वो जो बोझ मैं देता हूँ वो बहुत भारी करके आप लोग महसूस नहीं करेगा। There's one reason why it doesn't seem very hard or very burdensome. ऐसा महसूस नहीं करेगा, एक रीजन एक कारण है। Because yoke is carried by one more person with us. क्योंकि वो जो जुआ है और एक व्यक्ति हमारा साथ उसको लेके चलने के लिए मदद It is करेगा। none other than our Lord Jesus Christ, who walks close to us and carries our burden, shares our burden with us. वो और कोई नहीं है, हमारा यीशु मसीह की हमारा साथ शामिल होकर उस जुआ को लेकर चलता है। If we are ready to hold His hand and walk with Him and do what He says, it may seem like hard, but it will not be that much hard because God is with us. जब हम उस जुआ लेकर उनके साथ चलता है, उन्होंने कुछ बातें करने के लिए बोलेगा, हमसे बहुत भारी या बहुत मुश्किल लगेगा, फिर भी वो हमारा साथ है तो हमको सब कुछ कर सकता है। Because He is with us. क्योंकि वो हमारा साथ है। Now, let me just before I conclude, give a small comparison and then I will conclude my words. और एक तुलना करने का बात आप लोगों के सामने बताते हुए मैं बैठना चाहता हूँ। Sin is very easy, very smooth or very light in the beginning. पाप जो है बहुत इजी है, बहुत आसान बात है शुरुआत में। Very light in burden. बहुत कमजोर महसूस करते, बहुत भारी तो नहीं है। But here God's word, God's yoke, God's commission, commandments seem hard to us in the beginning. परमेश्वर के जुआ या कमांडमेंट जो आज्ञा पहले बहुत भारी करके बहुत कठिन का रूप में हम महसूस करता है। When God says something, you need to do this, we'll say, oh God, it's too much for me. How will I be able to do that? अगर परमेश्वर ने हमें कुछ करने के लिए बोला था, हम उनसे बताता है बहुत मुश्किल है परमेश्वर करने के लिए। Here sin is very easy at the beginning. ये जो पाप है पहले बहुत आसान बात है। But once you run that course, you will find sin is becoming heavier, and the most heaviest thing it will become in life. उसी पाप के जीवन में हम आगे बढ़ते बढ़ते जाने का समय हम महसूस कर सकता है बहुत भारी है इस पाप का जीवन। It will crush you under its weight. वो हमें बहुत तोड़ते टुकड़ा करते हुए एक अनुभव हमारे जीवन में लाता है। On the other side, दूसरी बात साइड में when we walk with Jesus, take under His yoke, जब हम परमेश्वर की जुआ का अधीन में जीता है,
his burden starts to become light and lighter upon us. वो जो बोझ है हमको बहुत हल्का हल्का और हल्का होते ही जाएगा, Because he takes the heaviest part and asks us to take this little or the easiest part or the light burden only he will place upon वो us. जो बड़ा बोझ की वो जो भारी सामान वो उठाते हुए हमको हल्का चीज देते हुए हमको आगे चलाता। A mother will not ask a small child to carry that 10 kg of wheat flour in his bag. in his hand. कोई भी माता ने उनका छोटी बच्चे को और बच्ची को बड़ा वेट वाला सामान लेकर चलने के लिए नहीं बोलता है। Just to share her burden, to give the responsibility, very small, maybe some biscuits or maybe a half kg, 1 kg of salt or something like that. Light thing probably that mother will give to वो the जो child. उनका जो शामिल होकर आगे चलने के लिए जो छोटा सा जो चीज उनका हाथों में होगा वही पकड़ाएगा उनका बच्चा And से। the child becomes so happy, I am sharing the responsibility of my mother. जब बच्चा बहुत खुशी हो जाता है क्योंकि मैं भी मेरा माँ के साथ कुछ जिम्मेदारी को कर रहा हूँ। I want to end this word with a question. एक सवाल पूछते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूँ। Will you share in the burden of heavy burden of sin, or will you share in the yoke of Jesus Christ? क्या आप लोग वो बहुत भारी चीज पाप के साथ लेके आके चलना चाहता है या परमेश्वर की जुआ के साथ जीवन को आगे लेके चलना The चाहता है? decision is yours, and conclusion also, all the end also, we ourselves need to face. निर्णय योजना आपका ही है क्यों, और कंक्लूजन भी आपका हाथों में ही है। Consequence also we only have to face. उसके आगे वाला परिणाम भी हम भी सामना करना May पड़ेगा। God bless you all bless us all with this psalm. इस भजन संगीता से परमेश्वर सबको We आशीष do दे। not have to expound upon all that the segment that we had divided, but I believe God has spoken to us through this small few verses. इस भजन संगीता को अलग अलग भागों में बांटे थे, हम सबका ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो छोटी सी चिंता आप लोग परमेश्वर से और परमेश्वर आपसे बातें करने के लिए उपयोग हुआ। God bless you all. Thank you. परमेश्वर सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग खड़े होकर